Can we come during any one of the practices that you keep to collect the paper? नो आई लेट यू नो. हो सके तो आज ही है एक दिन 2 to 4 के बीच में. उसके बाद कहीं होगा तो आई लेट यू नो. ठीक है. Tomorrow we'll have practice, no? या चलो. सम नंबर 12 का जर्नल. मैं टेक्स्ट बुक में जगह छोड़ा रहेगा. You must have left some space, no? Tell me what will be your first entry. Sum number 12 क्या होगा आपका सबसे पहला एंट्री? Reserve fund to Deshpande to Dikshit. Reserve fund to Deshpande Dikshit Dave Capital. Write down. Reserve fund account debit to Deshpande Dikshit Dave Capital. Reserve fund account debit to Deshpande Dikshit Dave Capital. Reserve fund account debit to Deshpande Dikshit Dave Capital. Amounts are 1200, 6, 4 and 2. 1200, 6, 4 and 2. 1200, 6, 4 and 2. Reserve fund distributed. Reserve fund distributed. Reserve fund distributed. Reserve fund distributed. Okay. What will be your second entry? Big entry. Big entry. Correct. Because you don't have any other reserves or any losses to be distributed. So big entry लिखो. क्या होगा big entry? Realization account debit to goodwill, to plant, to stock, to debtors, to prepaid expense, to investments. Realization account debit to goodwill, to plant, to stock, to debtors, to prepaid expense, to investments. Realization debit to goodwill, to plant, to stock, to debtors, to prepaid expense, to investments. Amounts are there in the sum. What is the total? That also you have. Total is, I think, 54,400. Is that right? Yes. 54,400 is that is the total. Fifty-four 400 is the total. Please check. Sundry assets transferred. Narration is sundry assets transferred. Sundry assets transferred. Sundry assets transferred. Okay. Third entry would be creditors account debit. Mrs. Deshpande's loan debit. Creditors debit Mrs. Deshpande's loan debit to realization. Creditors debit Mrs. Deshpande's loan debit to realization 8, 10 and 18. Creditors debit Mrs. Deshpande's loan debit to realization 8, 10 and 18. 8, 10 and 18. Sundry liabilities transferred. Sundry liabilities transferred. Sundry liabilities transferred. I think the next entry is for sale of assets. क्या होगा आपका fourth entry? Cash to, sorry. अच्छा हाँ, RDD एक रह गया. RDD to realization. RDD को पहले वाले में डाल दिया तो भी चल. RDD to realization 1000. They're asking something, Vidushi. RDD साथ में कर सकते हो. Yes, yes, yes.
RDD to realization 1000, RDD to realization 1000, RDD transfer to realization. RDD to realization 1000, RDD transferred to realization. RDD transferred to realization. RDD transferred to realization. Okay. Next, cash to realization. Cash to realization. कितना होगा cash to realization? Total is 39,000. Cash to realization 39,000. Sundry assets realized. Cash to realization 39,000. Sundry assets realized. Cash to realization 39,000. Sundry assets realized. Sundry assets realized. Cash to realization 39,000. Sundry assets realized. उसके बाद कुछ टेक ओवर हुआ है एसेट साइड पे? Don't take. एसेट्स में तो कुछ नहीं है. तो लायबिलिटीज पेड ऑफ की एंट्री asset- रियलाइजेशन कैश डिक्सिट लोन और डवे लोन का मतलब वो वो- रियलाइजेशन. पे ऑफ करेंगे ना तभी आएगा. अच्छा. बैलेंस लिखने की तो कोई एंट्री नहीं होती ना. ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती. तो रियलाइजेशन टू कैश, नेक्स्ट एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश. आई थिंक द अमाउंट इज 11,200. नहीं, व्हाट इज द अमाउंट? 12,300. Realization to cash 12,300. Realization to cash 12,300. बराबर. Realization to cash 12,300. Sundry liabilities paid off. Sundry liabilities paid off. Sundry liabilities paid off. Realization to cash 12,300. Sundry liabilities paid off. Then you got Don't take. लोन टेकन ओवर. यस, उसका एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू देशपांडे's कैपिटल. रियलाइजेशन टू देशपांडे's कैपिटल, लायबिलिटी टेकन ओवर. रियलाइजेशन टू देशपांडे's कैपिटल, लायबिलिटी टेकन ओवर. रियलाइजेशन टू देशपांडे कैपिटल, लायबिलिटी टेकन ओवर. रियलाइजेशन टू देशपांडे कैपिटल, लायबिलिटी टेकन ओवर. रियलाइजेशन टू देशपांडे कैप, लायबिलिटी टेकन ओवर. उसके बाद आपका ये एंट्री आएगा लोन्स रिपेड का. Dixit loan to cash to realization. दीक्षित लोन टू कैश टू रियलाइजेशन एंड दवेज लोन टू कैश टू रियलाइजेशन. Dixit loan, Dave loan to cash. टू कैश टू रियलाइजेशन. दीक्षित लोन टू कैश टू रियलाइजेशन, दवेज लोन टू कैश टू रियलाइजेशन. नेक्स्ट टू Can we एंट्री. club the entry? Yes, you can. दीक्षित लोन, दवे लोन टू कैश टू रियलाइजेशन मर्ज कर सकते हो. दीक्षित लोन टू कैश टू रियलाइजेशन, दवेज लोन टू कैश टू रियलाइजेशन. हाँ, लिखा है ना, तो टू कैश टू रियलाइजेशन. देखो अकाउंट में दीक्षित लोन में टू कैश टू रियलाइजेशन, दवेज लोन में टू कैश टू रियलाइजेशन. दीक्षित लोन में है अमाउंट 3,000 टू कैश 2,700 टू रियलाइजेशन 300. एंड दवेज लोन में आएगा 7,000 टू कैश में 6,300 टू रियलाइजेशन 700. Dixit loan to cash to realization, Dave's loan to cash to realization, that is being Dixit and Dave's loan paid off. Narration होगा Dixit loan paid off at discount, Dave's loan paid off at discount. Dixit loan paid off at discount, Dave's loan paid off at discount. Dixit's loan paid off at discount, Dave's loan paid off at discount. Dixit and Dave's loan paid off at discount. फिर आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस. तो व्हाट वाज दैट? प्रॉफिट था कि लॉस था? Loss. लॉस था. एंट्री क्या होगी आपकी? दीक्षित दवे, देशपांडे दीक्षित दवे टू रियलाइजेशन. देशपांडे दीक्षित दवे कैप टू रियलाइजेशन. देशपांडे दीक्षित दवे कैप टू रियलाइजेशन. देशपांडे दीक्षित दवे कैप टू रियलाइजेशन.
कितना आएगा 8100, 8100, 5400, 2700 and total is 16200. 8100, 5400, 2700, total is 16200. Total is 16200. Deshpande, Dixit, Dave, cap to realization. Loss on realization transfer. Loss on realization transfer. Loss on realization transfer. फिर आएगा आपका फाइनल सेटलमेंट एंट्री, कैश टू दवे कैपिटल 500, कैश टू दवे कैपिटल 500, फाइनल सेटलमेंट मेड, 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 and Deshpande Dixit to cash. Deshpande Dixit to cash. Final settlement made. Deshpande Dixit to cash. Final settlement made. Deshpande Dixit to cash. Final settlement made. What is the amount of Deshpande Dixit to cash? 11,000 and 10,500. Total is 21,500. 10,500, no? 11,000 and 10,000. And 10,500. 10,500 and 10,000. What is the amount, guys? 10,000. 10,000. 11 and 10 है, mistake है. 11 and 10 total is 21. 11 and 10 total is 21. Deshpande Dixit to bank, to cash. Deshpande Dixit to cash. 11, 10, 21. Final settlement made. Being final settlement made. Being final settlement made. In a standard textbook now. Guys, please take out the standard textbook. Have a pencil. I'll just do the marking. Sir, take my textbook now. I'll see. सर सुनो मेरा तो नया लेवल है एकदम सब I'll see. Sir, bye. चीटिंग सर वो शेयर कर सकता है, तुम लोग क्या करेगा? We can also share. सीधा बैठ Sharing is caring. मान ली. चलो. That completes the dissolution part of sums. We are going to the objectives. All of you take out standard textbook quickly. Take standard textbook. अब देखो डिसोल्यूशन चैप्टर में आपका ट्यूसडे को टेस्ट है, ठीक है? सेम टाइमिंग्स है, सेम स्लॉट है जो लास्ट टाइम था 4 to 7 वाला. आपका जो सेम स्लॉट था उसी पे स्टिक टू रहना. जो लोग 4 o'clock आए थे कम एट 4 o'clock, जो लोग 5:30 आए थे कम एट 5:30. प्लीज स्टिक टू सेम स्लॉट. लास्ट टाइम का एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट था, कोई ज्यादा लॉप साइडेड नहीं हो गया, दोनों बैच में बैलेंस होके आए थे स्टूडेंट्स. So 4 to 5:30 and 5:30 to 7 on Tuesday. सर बट one in a bench जरूरी है. 1 in a bench अगर आपका बैड लक हुआ तो, अदरवाइज काफी जगह 12 लोग 2 in a bench भी थे. तो छापने अपने के लिए पढ़ो मत, इज्जत से पढ़ो. ये टेस्ट में भी वो 2 in a bench करके भी भोपाड़ा किया है तुम लोग. अब सुनो सर एक ही सेट निकाला तब भोपाड़ा नहीं होगा. हाँ वो सब है ना, तुम कुछ भी आर्ग्यूमेंट कुछ भी बोलता है अभी. तुम टेस्ट इजी करो, पेपर इजी निकालो. मैं पढ़ाई करने वाला नहीं है, ये छोड़ के बाकी सब बोलने का. तुम पढ़ाई करो ना. आ रहा है ना स्टूडेंट, दे हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स 40 on 40. कितना 25 लोग को है 38, 37, 36 मार्क्स. तो तुम लोग को काय को नहीं आ सकता है, जनता को आ रहा है. तो जनता नोज यू डोंट स्टडी. इसको आया है 34. So study you will get marks. 34 is fine in this test. Level of difficulty के हिसाब से 34 was. So anything above 32 was good in this test. But you study. If you don't study, you sit at home. ऐसा ही टाइम पास करेगा, एक दो सम प्रैक्टिस करेगा टेस्ट से पहले और आ जाएगा, ऐसा पेपर आ जाएगा, भगवान बोलेगा मेरे को. कुछ नहीं होने वाला है. Nothing is going to happen. Okay? भगवान कुछ इंक्लूजन नहीं होने वाला है. तो बेटर स्टडी एंड कम एंड राइट इट सिंसियरली. 12 मार्क आया तेरे को ये टेस्ट में, बहुत हाई टाइम हो गया. मैं तेरे को उस दिन बोला 60 मार्क आएगा तेरे को बोर्ड्स में, ऐसा रखेगा. वो अभी भी वही लेवल चल रहा है.
अंदर से सीरियसनेस नहीं आएगा ना। मैं 15 सम बोला था लिख के प्रैक्टिस करने के लिए, अभी तू कितना किया, एक दिन नहीं आया तू प्रैक्टिस सेशन। नहीं करेगा प्रैक्टिस, नहीं होने वाला। और बोर्ड्स 100% फरवरी में होगा होगा और होगा ही। केस का ग्राफ देखो तुम लोग, ऐसा जा रहा है, ऐसा 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 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, डेटा देखो तुम, यू सी द डेटा। कोरोना वायरस इंडिया, कोरोना वायरस महाराष्ट्र, टाइप ऑन गूगल, सर रोहन सर ने बोला active पोस्टपोन होगा cases, कंपलसरी। get the graph of case, get the graph of deaths. It is the lowest since last 25-30 days now. और अगर वो वेव आया भी तो 40-45 करोड़ लोग का वैक्सीनेशन हो गया है। तुमको वैसे भी नहीं लगता है, तुमको वैसे भी तुम्हारा घर वाला आजू बाजू जिसको हो गया, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज आ गया है। तो ऐसा सोचो ही मत कि बोर्ड नहीं होएगा, लेट होएगा। होएगा, 100% होएगा और बूच मार के जाएगा बराबर। रोहन सर तो बोलते हैं हम लोग को कि बोर्ड लेट ही होने वाला मेरा है। बात सुन रहे हो तुम लोग? नहीं होएगा ऐसा कि बोर्ड नहीं होने वाला है, होएगा ही बोर्ड। इज इट क्लियर? पढ़ाई करके रखो, मजाक में लोगे उतना बम्बू टाइट लगने वाला है, याद रखना। यू हैव टू स्टडी, दैट इज ओनली वे आउट। अब सुनो, ट्यूसडे का टेस्ट के लिए सुनो, 3 questions would be there. Okay, 3 questions of dissolution, 10 marks each, and 5 mark का objective, 30 mark test, 35 mark test it is. Okay, 4 varieties of questions we have done in dissolution. One is normal sum, capital current के साथ. One is single partner insolvency, capital current के साथ. 2 partner insolvency, वो खाली capital के साथ. और all partner insolvency, वो भी खाली capital के साथ. क्योंकि 2 पार्टनर और ऑल पार्टनर में करंट अकाउंट आने का सवाल नहीं है। और जर्नल खाली नॉर्मल सम में आ सकता है, सिंगल पार्टनर, 2 पार्टनर, ऑल पार्टनर में जर्नल नहीं है। तो मैंने तुमको कम से कम 7-8 सम का जर्नल करवाया है, खाली उतना सम भी देख लिया, जर्नल तो गो थ्रू किया। जर्नल तो क्या, लेजर आ गया तो जर्नल 2 बाय 2 बाय करके लिखने का है। खाली ध्यान रखना क्या है कि कोई एंट्री स्किप ना हो जाए, कोई एंट्री स्किप ना हो जाए। पहले तो तुम्हारा एम्प्टी द बैलेंस शीट है, उसमें जो जर्नल एंट्री आता है वो बिग जर्नल एंट्री, लायबिलिटी ट्रांसफर, रिजर्व, लॉसेस, वो वाला है। फिर एसेट सेल, एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी पेड ऑफ, लायबिलिटी टेकन ओवर, और फिर पार्टनर लोन है तो वो कर देने का। फिर प्रॉफिट लॉस और फाइनल सेटलमेंट, प्रॉफिट लॉस एंड फाइनल सेटलमेंट, गो इन द सेम ऑर्डर, डोंट स्किप अ जर्नल एंट्री, खाली वो ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी बिना लेजर के जर्नल हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसा होएगा? कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा फाइनल सेटलमेंट तो का। ओनली कैपिटल भी मेक देन रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कहाँ से मिलेगा? रफ में रियलाइजेशन भी करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू डिसोल्यूशन विदाउट मेकिंग लेजर। डायरेक्टली ओरली जर्नल पॉसिबल ही नहीं है। ओरली जर्नल है ना, खाली एक चैप्टर में पॉसिबल है। तुमको मालूम है कौन सा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वो भी तब जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल ना दिया हो, जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल ना दिया हो। जो मैंने पेपर में पूछा था वो भी स्ट्राइक नहीं हुआ किसी किसी को। जो मैंने पेपर में जानबूझ के पूछा था, यही पेपर में, टेस्ट पेपर में एडमिशन, हाँ वही तो पूछा था मैंने कि आप बिना लेजर के जर्नल कर सको। पब्लिक फिर भी लेजर बनाने गया। वही मैंने क्वेश्चन में डाला था कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं था, आप एडमिशन का क्वेश्चन विदाउट लेजर कर सको। फिर भी मेनी ऑफ यू हैव डन लेजर अकाउंट्स एंड देन डिक द जर्नल एंट्री। बट ठीक है, या तो 10 मिनट ज्यादा जाता है। इफ यू फील नॉट पॉसिबल लगता है खुद से करने का तो करो वैसा, अदरवाइज लेजर बना के ही जर्नल करो। ऑलवेज विल बी श्योर विद कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग, यू वोंट डू एनी मिस्टेक। टाइमिंग भी एक्स्ट्रा दिया है, 20 मिनट इज फॉर लेजर, जर्नल के साथ है तो 30 मिनट है। बट टाइम किधर जाता है? सोचने में जाता है। तुम्हारा पेपर आता है, हाँ ये क्या है, वो रेशियो क्या है, वो कैसे, तुम आधा टाइम सोचने में, दैट इज शोइंग योर लैक ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू हैव प्रैक्टिस इन, पैसा जैसा पेपर आएगा खट 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 सीधा लिखने का चालू। तुम सोचने में बर्बाद कर रहे हो तो टाइम अनलिमिटेड है। 3 घंटे का पेपर 5 घंटे में लिखते रहो सोच सोच के। सोचने का काम प्रैक्टिस में करने का है तुम। आर यू लिसनिंग? यू हैव टू डू द थिंकिंग थिंग एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज देयर। विराट कोहली नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, ऐसे ही जाएगा, सोचेगा ये फास्ट आएगा, ये स्लो आएगा, हो जाएगा क्लीन बोल्ड उधर। हटाक करके सीधा बॉल आता है, मारता है ना वो, क्यों हो सकता है उसका? 1 लाख बॉल ही हैज फेस्ड इन प्रैक्टिस। जो भी वेरिएंट आया उसका सबकॉन्शियस में फिट हो गया है वो। जितना प्रैक्टिस करेगा, ये करता है, भर भर के प्रैक्टिस करता है, हर्ष करता है, वीर करता है, प्रियांश करता है,
तुम लोग देखो, ऐसा पेपर आएगा सीधा मुंडी नीचे, खट 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 सीधा सॉल्व करने का चालू। इनका सोचने का ये सब बहुत रेयरली दिखेगा तुम्हें, वेरी रेयरली यू विल सी देम थिंकिंग। बी लाइक देम, प्रैक्टिस करके रखो। 15 सम में बोलता हूं तो उतना करना है। डिसोल्यूशन का मिनिमम 10 सम करना है प्रैक्टिस, लिख के। मिनिमम 10 सम लिख के करना है। नॉर्मल सम का टाइप, सिंगल पार्टनर, इंसॉल्व, सब मिला के बोल रहा हूँ। 4 टाइप है, नॉर्मल, सिंगल पार्टनर, डबल पार्टनर और ऑल पार्टनर। इसमें से कोई भी 3 सम आएंगे और एक में जर्नल होगा। किसमें जर्नल होगा तुमको मालूम है अभी, किसमें जर्नल होगा। बाकी 2 सम दूसरे वैरायटी के रहेंगे। सिंगल पार्टनर, डबल पार्टनर या सिंगल, डबल या ऑल में से कोई भी 2 रहेगा। सिंगल, डबल या ऑल में से कोई 2 आएगा वैरायटी में, ठीक है। बराबर से देख के रखना, प्रैक्टिस लिख के करना। 10 सम है, कल भी प्रैक्टिस है, सैटरडे को भी है प्रैक्टिस। मेहरबानी करके क्लास में आओ, प्रैक्टिस करो। yesterday was also there practice, ट्यूसडे को भी था प्रैक्टिस। if you are not coming at class, sit at home and practice 10 sums, write and do it, नहीं तो नहीं होने वाला है। Did anyone get full in this test? Admission retirement. 3 people have scored full. I think you only have scored full. Kirtana, Priyal Parekh and Virsha। कितना स्कोर मोस्टली 38 ना। तो 38 39 है। एक मिनट मैं बोलता हूँ। इधर गया मेरा मोबाइल। 3 लोग को फुल है, मैं बोलता हूँ ना, अभी बोलता हूँ। मोस्टली नहीं, इसको 38 देखो, वीर, प्रियल एंड कीर्तना, कीर्तना is 40। वीर, प्रियल एंड कीर्तना, 3 people have scored full, 40 on 40। बाकी ये देखो स्कोर्स तुमको बोल देता हूँ मैं, देखो तुम यू लिसन टू द स्कोर। प्रियांश पटेल, प्रियांश पारेख, प्रियांश पारेख क्या, प्रियांश डेडिया, प्रियांश कपासी 39.5, 38.5। साहिल has scored 38.5, वरुण has scored 38, जिया has scored 37, Kashish has scored 36, Urmi has scored 36, Nishi has scored 36, Rutva has scored 36, Kiran has scored 36. All these are on 90% level. काय को आया इनको मार्क्स, हवा में से आया। थॉरली प्रैक्टिसिंग। ये लोग को पूछ के देखो, भगवान आता था सपने में बोलने के लिए, कोई नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस। व्हाई यू कांट स्कोर? वो लोग कोई रॉकेट साइंस से ऊपर से आया है, तुम लोग के जैसा ही है। प्रैक्टिस किया, मार्क्स आ गया। यू कैन ऑल्सो डू। नहीं करेगा, नहीं होएगा। ऑनलाइन है ये वो, अभी तो ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस हो रहा है। तुमको खाली रीजन रख के रखेगा कि हाँ ये था इसके लिए नहीं हुआ, ये था इसके लिए नहीं हुआ, नहीं होएगा। प्रैक्टिस प्रॉपरली 10 सम्स, और मेहरबानी करके कल आओ 3 घंटा प्रैक्टिस रखा है सैटरडे इवनिंग। कम एंड प्रैक्टिस एट क्लास। ये सीधा ट्यूसडे टेस्ट रहेगा, बीच में शायद कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाला है। मंडे को इफ देयर इज एनी चांस विल कीप, अदरवाइज नहीं रहेगा मंडे को प्रैक्टिस। सैटरडे इज योर लास्ट प्रैक्टिस, अदरवाइज घर पे करने का। ओके, तो कम एट क्लास, अदरवाइज सिट एट होम। इफ यू आर डूइंग 10 सम्स मिनिमम करना। ऑब्जेक्टिव्स ले लो फटाफट, 5 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यू हैव, प्लीज टेक दैट। पेज नंबर 241। 241 पे आ जाओ सब लोग। In case of dissolution, assets and liabilities are transferred to dash account. Realization account. Okay. Dissolution expenses are credited to dash account. Credited पूछा है, debited नहीं पूछा है। Debited होता तो realization, credited पूछा है तो cash back. Okay. Deficiency of insolvent partner will be suffered by solvent partner in their प्रॉफिट शेयर। मालूम है ना, ये solvent to insolvent, single partner insolvency, you do that, right? If any asset is taken over by the partner from the firm, his capital account will be debited. What is the entry? Partner capital to realization. Realization में by capital, capital में to realization. So debited. If any unrecorded liability is paid on dissolution of the firm, dash account is debited. Realization account is debited. Partnership is completely dissolved when the partners of the firm become insolvent.
Assets and liabilities are transferred to realization account at their book value. If the number of partners in a firm falls below 2, the firm stands dissolved. क्यों falls below 2 तो क्यों dissolve? Sole proprietor बन जाएगा ना वो. Realization account is dash on realization of asset. So can you repeat the eighth one? एक मिनट. 8th one में if the number of partners in a firm falls below 2, the firm stands dissolved ना. Dissolved बंद हो जाएगा ना, क्योंकि 2 के नीचे आ गया मतलब 1 हो गया. 1 मतलब sole proprietor. Partnership firm is gone. Realization account is dash on realization of asset. Credited. Credited. What do you mean by realization of asset? Sale of asset. Sale of asset का एंट्री क्या होता है? कैश बैंक टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन क्रेडिट होता है. क्या डेबिट होता है? ट्रांसफर में डेबिट होता है. और रियलाइजेशन में क्या डेबिट होता है? कैश बैंक डेबिट होता है. रियलाइजेशन क्रेडिट होता है. All activities of partnership firm ceases on Resolution. give one word. Debit balance of realization account. Loss Loss. of Realization loss. Winding up of partnership business. dissolution. पूरा लिखने का. Dissolution of partnership firm. Firm लिखा तो भी चलेगा. Dissolution of a partnership firm या dissolution of a firm. An account open to find out the profit or loss on realization of assets and settlement of liability. Real account. Realization account. Debit balance of an insolvent partner's capital account. Capital. Capital deficiency लिखना. पूरा लिखना. Capital deficiency. Don't write only deficiency. Okay. Capital deficiency. Capital deficiency. Once again, I am repeating. Don't write only deficiency. Capital deficiency. Credit balance of realization account. Profit on realization. Conversion of asset into cash on dissolution of a firm. Realization. Realization. Liability likely to arise in future on happening of a certain event. Contingent liability. Very good. Very good. Contingent liability. Assets which are not recorded in the books of the firm. Unrecorded. Unrecorded asset. Unrecorded asset. Very good. The accounts which show realization of assets and discharge of liability. Realization. Realization account. Expenses incurred on dissolution of a firm. Realization या dissolution expense. Realization या dissolution expense. State whether are true or false with reason. Reason भी लिखना है. 2.5 mark का रहेगा ये एक. तो एक point चाहिए reason का. The firm must be dissolved on retirement of a partner. False. False. A firm is not dissolved. ऐसा लिख सकते हो. Not dissolved on retirement. It is dissolved when all the partners are insolvent. When all the partners leave. एडिटेड बुक में हम भेज दोगे आप? Edited book में एडिटेड टेक्स्ट बुक आप भेज दोगे ग्रुप पे? एडिटेड टेक्स्ट बुक है ही नहीं ना. वो दूसरा मैंने भेजा हुआ है, उसमें है मार्किंग्स ओरिजिनल वाला. ये डिसोल्यूशन का भी है. हाँ उसका भी है. और चैप्टर्स मार्किंग सर. मतलब क्या पूछ रही हो? एडिटेड टेक्स्ट बुक में क्या हो गया? आप जनरली टेक्स्ट बुक में सॉल्व करते हो जब ऑनलाइन होता है, पर अभी यू आर सॉल्विंग इन फिजिकली, सो आप आंसर्स. हाँ आंसर. हाँ आंसर्स उसमें है. एडिटेड में है. जो मैंने पीडीएफ शेयर किया उसमें है. Firm must be dissolved on retirement of a partner. False. Firm is not dissolved on retirement/death. Firm not dissolved on retirement or death. It is dissolved on all partner insolvency. It is dissolved on all partner insolvency. Dissolution मतलब बंद हो गया. बिजनेस बंद नहीं होता है ना रिटायरमेंट और डेथ पे. अगर तीनों पार्टनर को बिजनेस बंद करना है तो वही हो गया ना. सब पार्टनर्स निकल रहे हैं. ऑल द पार्टनर्स वॉलंटरी वांट टू क्लोज डाउन. डिसोल्यूशन. हाँ इंसॉल्वेंसी तो खाली एक रीजन दिया है. इफ ऑल द पार्टनर्स वॉलंटरी वांट, इफ ऑल द पार्टनर्स वांट टू लीव द बिजनेस, वो भी लग सकते हो. एक वन ऑफ द रीजन दिया है ना खाली एक पॉइंट के लिए. ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट ये तुमको है अभी सिलेबस में. और कुछ on dissolution cash bank account is closed automatically. True. Closed ना वही tallied. Closed automatically. True.
रीजन में क्या लिखोगे? ऑल द मनी left in cash is paid off to the partners. All the money left in cash is paid off to partners. Paid off to partners. Cash bank automatically close हो जाएगा. On dissolution, bank overdraft is transferred to realization account. True. Always assume that bank overdraft is external liability and there are two bank accounts. Assumed that bank overdraft is external liability. Assume that bank overdraft is external liability. Bank overdraft is external liability. And two bank accounts, one is having normal, one is having overdraft. हमेशा बोला था ना ओवरड्राफ्ट का कभी अकाउंट बनाने का नहीं. ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल सबको सेम ट्रीट करने का. रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्या करने का? पे ऑफ. सेम बैंक अकाउंट नहीं, दो बैंक अकाउंट अज्यूम करने का, एक नॉर्मल एक ओवरड्राफ्ट. A solvent partner having a debit balance to his capital account does not share the deficiency of insolvent partner's capital account. False. All solvent partners share. All डेबिट बैलेंस मींस हाँ. ज्यादा ड्राइंग हुआ है ना. हाँ, बट ही सॉल्वेंट ना. डेबिट होने से क्या फर्क पड़ता है? ही सॉल्वेंट, तो ही हैज टू शेयर द डेफिशिएंसी. ऐसा नहीं है. ऑल पार्टनर्स विल शेयर. ऑल सॉल्वेंट पार्टनर्स शेयर द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर. All solvent partner share the deficiency of insolvent partner. तो वो इंसॉल्वेंट ही है. शेयर करने के बाद नहीं, वो इंसॉल्वेंट ही गिना जाएगा. ऐसा है. अगर कैपिटल का 0 हुआ तो इंसॉल्वेंट नहीं होगा ना. डेबिट भी हो गया तो भी इंसॉल्वेंट नहीं है. घर से पैसा ला सकता है. घर से पैसा नहीं ला सकता है ना, तो क्वेश्चन में दिया वो इंसॉल्वेंट है. तो जितना सॉल्वेंट पार्टनर है सब शेयर करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैलेंस. डेबिट बैलेंस हो कि क्रेडिट बैलेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. देन at the time of dissolution of partnership firm, all assets should be transferred to realization account. क्या है? All assets थोड़ी होता है. False. अगर एसेट बैलेंस All assets are not transferred to realization. लिखो cash, bank, P&L account debit balance, capital account debit balance, partner capital debit balance are not transferred. Okay. All assets are not transferred, guys. Do you Sir, even transfer loan debit? to partner, right? Sorry. Even loan to partner. Loan to partner is also not transferred. Current account balance is also not transferred. Debit wala. All assets are not transferred to realization. Cash bank होता है क्या? नहीं होता है. पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन नहीं होता है. पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन नहीं होता है. ये सब एसेट्स ही तो हैं, बट यू डू नॉट ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन. बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पब्लिक ने मिस्टेक किया था इसमें. करंट एसेट्स भी होता है, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस. ओके. तो कैश भी करंट में आता है लेकिन कैश नहीं होता है. वो ट्रू होएगा और उसके साथ ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड सम करंट एसेट्स. दैट वे यू कैन ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड सम करंट एसेट्स. इससे अच्छा जो नहीं होता है वो लिख दो ना, 2-3 आइटम. ट्रू. उसमें अच्छा, उसमें रीजन लिखने का, ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर सपोज्ड टू बी रियलाइज्ड. दोस एसेट्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी रियलाइज्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. गॉट इट? द एसेट्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी रियलाइज्ड, that is the reason which are transferred to realization. Okay, which can be sold off. यहाँ से पैसा आ सकता है. Okay, sold or taken. फिफ्थ वन का मैंने रीजन दिया है. कैश बैंक, पीएनएल डेबिट बैलेंस, कैपिटल डेबिट बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर्ड. और यू कैन राइट दोज एसेट्स व्हिच आर टू बी रियलाइज्ड, व्हिच कैन बी सोल्ड ऑफ, आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. ओके, दोनों में से एक चलेगा. Debit balance of insolvent partners capital account is known as capital deficiency. False.
क्या false? पढ़ो तो सही. Credit balance, right? No, 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 no. Debit balance of, what do you mean by debit balance? Debit side is greater. तो इसी को तो डेफिशिएंसी बोलते हैं. डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नोन एज कैपिटल डेफिशिएंसी. बताता था ना वो, डेबिट माइनस क्रेडिट, जो लाया उसके बाद जो नहीं लाया, दैट इज डेफिशिएंसी. उसके बाद ही तो आता है. अज्यूम करना है कुछ नहीं लाया. बराबर है. So debit balance of insolvent partners capital account is called deficiency, capital deficiency. True. Reason में लिखने का, as he cannot bring anything from private estate, as he cannot bring anything from private estate, as he cannot bring anything from private estate, as he cannot bring anything from private estate. That's why it is called capital deficiency. But ऐसा दिया है आपको कि debit balance of a solvent partner is called capital deficiency. That's false. Debit balance से कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब वो insolvent है, मतलब घर पे भी पैसा नहीं है, that time we will call it as capital deficiency. Is this clear? So debit balance in insolvent partners capital account is called capital deficiency. Solvent से कोई फर्क नहीं पड़ता. Dissolution takes place when the relation among the partners come to an end. At the time of dissolution, loan from partner will be transferred to realization. False. Where separate account. Realization में transfer नहीं करना है. पहले separate account. Why separate account? Because it is not internal. Not external. It is internal. More of internal. Internal लिख सकते हो. Separate account, as it is not an external liability, it is an internal liability. It is an internal liability, not an external liability. It is an internal liability. Not an external liability, it is an internal liability. Dissolution takes place when relation among partners comes to an end. अभी इसमें ना एक थोड़ा कैच था, एक्चुअली एक में मिस्टेक था. इसमें देखो तो पीछे आंसर में क्या दिया है. Dissolution takes place when relation among partners comes to an end. This is true. Ideally it should be true. But वो लोग ने क्या है, वो all word को emphasize किया हुआ है. देखो तो अभी क्या किया है. रिवाइज ना, लेटेस्ट वाला वर्जन जिसके पास है वो देखना. ट्रू दिया है. बराबर है. ठीक है. रिलेशन खाली ऑल पार्टनर, इधर अज्यूम करने का सब पार्टनर का रिलेशन खत्म हो. एक पार्टनर का रिलेशन खत्म होता है तो फॉर्म डिसॉल्व, दैट वुड बी रिटायरमेंट और दैट वुड बी डेथ. हाँ, ऑल वर्ड नहीं है तो अज्यूम किया हुआ है कि ऑल पार्टनर्स का रिलेशन खत्म हो गया. ओके, तो लिख दो उधर ट्रू. इट शुड बी ट्रू व्हेन, ऐसा तुम लिखना रीजन में, व्हेन ऑल पार्टनर्स रिलेशन कम्स टू एन एंड, व्हेन ऑल पार्टनर्स रिलेशंस कम टू एन एंड, फॉर्म इज डिसॉल्व्ड. When all partners relations comes to an end, form is dissolved. When all partners relation comes to an end, form is dissolved. Okay, but not by single partners relation. उधर लिखने का तो और लिख सकते हो, not by single partners relation. Okay, single partner relation खत्म हुआ तो that is retirement और that is death. उससे form dissolve नहीं होगा. Okay, all partners का रिलेशन खत्म हो गया, वो ऑल वर्ड चाहिए. नहीं भी दिया तो भी अज्यूम करना ऑल वर्ड. ठीक है. द इंसॉल्वेंसी लॉस एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म इज शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ट्रू. रेशियो हाँ, profits and losses, no more want to continue the business. Multiple reasons. Reason you can write in your own words, no problem. Insolvency loss at the time of dissolution of a partnership firm is shared by all the partners in, shared by solvent partners in their PSR. Is that true? True. Reason में क्या लिखने का? The ratio of gain is the ratio in which they are supposed to share loss. The ratio of gain is the ratio in which they are supposed to share the loss. They are supposed to share the loss.
Okay, deficiency is a loss. The ratio of gain is the ratio in which they are supposed to share the loss. Realization loss is not transferred to insolvent partners capital account. False. क्या लिखोगे reason? All partners share realization profit loss. All partners share realization profit loss. आज तक कभी ऐसा हुआ है कि इंसॉल्वेंट को शेयर नहीं देते हैं? सबको जाता है. All partners are supposed to share realization profit or loss. All partners are supposed to share realization profit or loss. अभी थोड़ा solve the following है, तो take your notebook, last page ले लो या कहीं पे उधर solve करो. थोड़ा थोड़ा तो बहुत easy है, आप textbook में भी कर सकते हो. Vinod, Vijay and Vishal are partners in a firm sharing profits and losses as 3-1. Vishal becomes insolvent and his capital deficiency is 6,000. Distribute the capital deficiency among solvent partners. कितना आएगा? 3600, 2400. Is that right? All of you got that or no? कैसा करने का आता है ना? हेलो, 6000 की डेफिशिएंसी है ना, कौन शेयर करेगा? रिमेनिंग 2 पार्टनर्स. I think that should be 3600 and 2400. Is this clear? Creditors of 30,000, bills payable of 20,000, bank loan of 10,000, available bank balance is 40,000. What will be the amount that creditors will get in case of all partner insolvency? अभी इसमें भी एक कैच है. ओल्ड वर्जन में ना ये लोग ने बैंक लोन को सिक्योर्ड अज्यूम किया था, तो उसको 10 पे किया और 30 बचा, और 30 को ये लोग ने, दोनों अनसिक्योर्ड है तो आप क्या करते हो? लायबिलिटी रेशियो में डालते हो. तो 30 को ये लोग ने 3:2 में डाला हुआ है, तो 18 और 12, तो क्रेडिटर का अमाउंट है ना 18 दिया है. आपको देखो कितना दिया है अभी पीछे दिया होगा. कैलकुलेट द फॉलोइंग. नहीं सर, अगर ये सिक्योर्ड नहीं है तो ये करेंगे 40,000 से डिवाइड. हाँ वही नहीं दिया. ABC और FV कैलकुलेट द फॉलोइंग का नहीं दिया रिवाइज टेक्स्ट बुक में भी किधर. Sir, but it's not mentioned that bank loan is secured, no? That's what na, that is the problem. But then in solution they have taken, that is wrong only, but I wanted to see that if they have revised. देखो बैंक लोन के बाजू में कहीं दिया है कि इट इज सिक्योर्ड? प्रैक्टिकली होता ही है, नो डाउट. प्रैक्टिकली बैंक लोन इज ऑलवेज सिक्योर्ड, बट तुम्हारा थियरी में तुमको दिया है बैंक लोन सिक्योर्ड तो ही सिक्योर्ड लेने का, नहीं दिया तो अज्यूम करने का इट इज अनसिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड है तो मतलब किस में जाएगा ये 40,000? तीनों को जाएगा. 3:2:1. 3:2:1. इज दिस क्लियर? 3:1 तो इसको जाएगा 20,000. हाँ राउंड इट ऑफ ना, इसको जाएगा 20, इसको जाएगा 13, 6, 7 और इसको जाएगा 6, 6, 6, 7. बराबर છે? उधर अगर जो क्रेडिटर्स वाला पार्ट है उधर में 20,000. ये बैंक लोन है, ये बैंक लोन. सर इट इज कमिंग 1. हाँ ये बैंक लोन 1999 है. तो सर उधर में ये क्रेडिटर्स है और ये बिल्स पेबल है. उसने सब राउंड अप अज्यूम किया. उसने नहीं, मैंने किया. ये बराबर ही तो है. 40,000 का 360 था. हाँ तो सर उसने 20,000 अरे राउंड ऑफ ना અને એક્ઝેક્ટ પણ આવશે. તારા કેલ્ક્યુલેટરમાં છે ને ઈ 3/6 બરાબર 3/6 એટલે હાફ થયું ને 1/2. કેલ્ક્યુલેટરમાં ન થાય, એમ થાય. સમજાણું? तो 40,000 का हाफ 20,000 एंड देन दिस इज 2:1. 13, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 7. ये राउंड ऑफ, सबको राउंड ऑफ ही किया है मैंने. ओके, तो 20,000, 13, 3, 3, 3 एंड 6, 6, 6, 7. इसमें से कितना जाएगा अपना क्रेडिटर्स को नाउ? 20,000. व्हाट इट? सो दिया हुआ है सिक्योर्ड है तो ही सिक्योर्ड लेने का, सिक्योर्ड का इंफॉर्मेशन है तो ही लेने का, अदरवाइज लेने का नहीं. इज दिस क्लियर? Specified clearly that it is secured, it is
कौन सा एसेट से सिक्योर किया है, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना ही चाहिए, ठीक है। देखो मिस्टेक्स रहेगा टेक्स्ट बुक में, आपको मिस्टेक है नहीं है, मैं खाली आपको चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कि राइट आंसर उसके हिसाब से देखो। तुम मिस्टेक्स है तो उसको मिस्टेक ब्लाइंडली फॉलो मत करो। बोर्ड में वो लोग मिस्टेक फॉलो नहीं करेगा, बोर्ड में जो करेक्ट तरीका है वही करने का, समझा। तो मिस्टेक है कि नहीं वो चेक करके देखो, पीछे आंसर कुछ कुछ रॉन्ग दिया है, उसके लिए मैं खाली बोलता हूँ, बाकी जो राइट है वही करना है यहाँ। इज दिस क्लियर? जो राइट है वही लिखना है, राइट आंसर है वो मैंने तुमको एडिटेड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नॉट सिक्योर दिया होता है, सिक्योरिटी तो अज्यूम करने का सिक्योर्ड, अदरवाइज अनसिक्योर्ड। भी नहीं दिया तो अनसिक्योर्ड, सब अनसिक्योर्ड। तो इधर कुछ नहीं दिया है तो तीनों अनसिक्योर्ड थे। तीनों के कौन से रेशियो में पे ऑफ करने का? लायबिलिटी रेशियो, लायबिलिटी रेशियो। ओके, लायबिलिटी रेशियो इज 3:2:1। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, सॉरी एनी डाउट घर वाले? Insolvent partners capital account debit side total is 10,000, credit side total is 6,000. Calculate deficiency. 4,000. 15 किया है क्या उसमें? 10 minus 6 4. 10 minus 6 4. Fourth one, insolvent partner capital debit side 15 and insolvent partner brought cash 6. Calculate the amount of insolvency loss to be distributed among solvent partners. 9,000. 9,000 फोर्थ वाले का आंसर 9 है। फिफ्थ वाला, रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 6,000, पार्टनरशिप प्रॉफिट्स और लॉसेस एज 3:2:1। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। 3, 2 and 1, 3,000, 2,000 and 1,000. Is that clear? Answer in one sentence. What is dissolution of a partnership firm? लिखो, end of relation between all the partners. 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 When is realization account opened? At the time of dissolution to sell asset and pay off liabilities. At the time, ये खाली बंद होने के वक्त ही बनता है। At the time of dissolution to sell asset and pay off liabilities. Which accounts are not transferred to realization? अभी दिया ना, काफी है। 2-3 लिखोगे, कैश, बैंक, P&L डेबिट, जनरल रिजर्व, और भी लिख सकते हो, कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, करंट। ओके, who is called an insolvent person? A partner who Cannot bring sufficient cash from his private estate. Who cannot bring sufficient cash from private estate to pay off external liability. From private estate to pay off external liability. Who cannot bring sufficient cash from his private estate to pay off external liability. External चुका दिया तो आप solvent हो, external नहीं चुका पाया तो आप insolvent. Cannot bring sufficient cash to pay off external liabilities. बहुत बार किया है अभी, मेरे को बोलो तुम, what is capital deficiency? Debit balance of an insolvent partner capital account. Debit balance of insolvent partner capital account. Debit balance of insolvent partners capital account. That's capital deficiency. In what proportion is the balance of realization account transferred to partners capital or current profit sharing ratio? Who should bear the capital deficiency of insolvent partner? Solvent partner in PSR. Solvent partner या all partner भी लिख सकते हो in PSR. Which account is debited on repayment of partner's loan? Debited पूछा है वापस. Partner's loan. क्या एंट्री होता है पार्टनर लोन रीपे करने का? लोन टू कैश. अभी तो किया जर्नल में, 2 लोन, दीक्षित लोन, दवे लोन किया तो सही. लोन टू कैश, राइट? लोन डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है. Which account is debited on payment of dissolution expense? Realization expense.
Complete the table. Debit side total of realization 20,000. Credit side total question mark. Loss 24. 16. Credit is 16. Creditor 16,000. Bills payable 12,000. Third party liability. अरे थर्ड पार्टी मतलब दोनों का टोटल 28. दोनों थर्ड पार्टी तो है 28. 16 और 12 28. समझा ना? वो सेकंड वाला पपलू था, खाली थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल का टोटल पूछा है तुमको. क्रेडिट साइड टोटल ऑफ रियलाइजेशन 21. डेबिट साइड टोटल 16. प्रॉफिट 5. तो सीनियर केजी है. डेबिट साइड टोटल ऑफ कैपिटल 1,000. क्रेडिट साइड टोटल ऑफ कैपिटल क्वेश्चन मार्क. कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर 17,000. 34. कैपिटल डेफिशिएंसी मालूम नहीं है. कैश ब्रॉट 7. इंसॉल्वेंसी लॉस है 21. तो 28 हो गया. दैट कंप्लीट्स. कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब डेबिट बैलेंस कितना था? डेबिट बैलेंस 28. कैश लाया कितना? 7. तो हो गया ना लॉस. इंसॉल्वेंसी लॉस कितना हुआ? इंसॉल्वेंसी लॉस 21. कैश नहीं लाता तो पूरा 28 डेफिशिएंसी. इज दिस क्लियर? इसका सही. So that completes your dissolution. Okay. अब देखो, अब तक हमने क्या क्या किया है. ये आपका बोर्ड पेपर है, ठीक है? ये आपका बोर्ड पेपर है. क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7. ओके. क्वेश्चन 1 इज ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन 1 इज ऑब्जेक्टिव. कितना रहेगा मालूम है आपको? 20 मार्क. 4 ऑब्जेक्टिव आएगा कोई भी. ओके. एक 5 मार्क का. 4 into 5. 4 into 5. तो फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें प्रोफॉर्मा तो आएगा ही आएगा. वो जलसा है. 5 मार्क सिक्योर्ड. बाकी ट्रू और फॉल्स और वन सेंटेंस आने का चांस बहुत कम है क्योंकि उसमें रीजन लिखना होता है. तो वो आने का चांस बहुत कम है. फिर भी आई विल बी आस्किंग एवरीथिंग. प्रीलिम में सब कवर करने वाला है. इवन इन टेस्ट आपको कभी सरप्राइज में ट्रू और फॉल्स आ सकता है. ओके. मोस्टली ट्यूसडे को भी आ सकता है. यू नेवर नो. सो 4 into 5. ओके. इज दिस क्लियर? उसमें ट्रू और फॉल्स, फिल अप्स, कंप्लीट द फॉलोइंग, ऑड मैन आउट, अग्री डिसअग्री, आपका आंसर इन वन सेंटेंस, प्रोफॉर्मा, सब आ गया उसमें से. कोई भी 4 आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. अब क्योंकि वो लोग ने कट डाउन का बात किया पोर्शन का, था हम एक्सपेक्टिंग लास्ट ईयर का पैटर्न. तो लास्ट ईयर का पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन 2 में एडमिशन या फिर रिटायरमेंट. एडमिशन या फिर रिटायरमेंट एक क्वेश्चन करने का आपको 10 मार्क. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन होगा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर डिसोल्यूशन. ये भी आएगा 10 मार्क का. थर्ड क्वेश्चन आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर डिसोल्यूशन 10 मार्क का. फोर्थ क्वेश्चन आएगा आपका डेथ या फिर वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस. ये अपना बाकी है. वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस मैं करवाऊंगा, अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर भी आप डेथ ही सॉल्व करना. डेथ ही परफेक्टली करके जाना. क्यों? क्योंकि आपने एडमिशन रिटायरमेंट किया है और उसी से रिलेटेड है डेथ. खाली 4 एंट्री का ध्यान रखना है. वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, P&L सस्पेंस, वो 4 एंट्री का ध्यान रखने का बस. तो डेथ इज ऑलमोस्ट लाइक रिटायरमेंट ओनली. गॉट इट? गुडविल सेम है, रिजर्व्स, बैलेंस, ओके, प्रॉफिट लॉस रिवैल सब सेम है. खाली P&L सस्पेंस का है वो एवरेज लेके शेयर इनटू मंथ्स करने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो 2-4 आइटम का एक्स्ट्रा ध्यान रखने का. सो डू दैट. दिस ऑल्सो वी विल डू. ओके. दिस इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट, बट इसमें कैलकुलेशंस बहुत आता है. तो कैलकुलेशन में तुम्हारे पास कैलकुलेटर है नहीं तो किधर ना किधर एक कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक हुआ तो पूरा मार्क्स आने का चांस निकल जाता है. डेज में तुमको फुल फ्लेजेड उतना कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं रहेगा. इज दिस क्लियर? देन फिफ्थ क्वेश्चन इज आइदर यू हैव शेयर्स या फिर उसके ऑप्शन में आता है कंप्यूटर अकाउंटिंग. शेयर्स या फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग. अभी इसमें शेयर्स में डिटेल में करवाऊंगा. शेयर्स ही ट्राई करो अटेम्प्ट करने का. कंप्यूटर अकाउंटिंग बहुत छोटू चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है, 4 या 5 आंसर का चैप्टर है. एक दिन में हो जाएगा. उसको खाली रट्टा मारने का. वो खाली रट्टा मारने वाला चीज है. ओसी जैसा है. इट इज लाइक ओसी. ओके. यू हैव टू रीड इट. यू हैव टू रीड इट. जो एडवांटेज होता है ना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, सॉफ्टवेयर का, वो सब है. फास्ट, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम सेविंग,
okay, crease, virus ka issue, advantages, disadvantages, all those things are there. Okay, password protected and all. So shares and computerized account, but computerized accounting is theory. और थियोरी में कभी फुल मार्क्स मिलने वाला शेयर्स में गारंटी बेसिक ही है, तुमको एकदम डिटेल नहीं है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही करवाने वाला हूं, तो वो करके जाओगे फुल मार्क्स गारंटी मिलेगा तुमको शेयर्स में. फुल मार्क्स गारंटी विल गेट इन शेयर्स. इजी है. शेयर्स इज नॉट डिफिकल्ट. देन क्वेश्चन, और शेयर्स तो पढ़ो, शेयर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे भी जाके हायर लेवल के लिए. पूरा जिंदगी तुमको शेयर्स, कंपनी, इसके साथ ही डील करने का. कोई भी करो फाइनेंस का फील्ड, MBA फाइनेंस करो, CFA करो, CPA करो, CA करो, कुछ भी करो, कंपनी और शेयर्स तो आने ही वाला है सब. इज दिस क्लियर? तो परफेक्टली करेंगे. क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? ये दोनों क्वेश्चन 8-8 मार्क का है. उसके बाद 6th NPO जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, ये 12 मार्क का है. और ये लास्ट में फाइनल अकाउंट, ये आता है 12 मार्क का. इसमें अपना बाकी क्या है, NPO बाकी है, शेयर्स बाकी है, ये तो चिंदी है एक दिन का है, और वर्टिकल स्टेटमेंट्स बाकी है. ठीक है. सो NPO वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. 12 मार्क. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे बोले तो क्रूशियल चैप्टर ऑफ दिस ईयर इज NPO. एक लेक्चर मिस मत करना, अभी से बोल रहा हूं, एक लेक्चर मिस मत करना. हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ अलग होगा, हर एक सम में कुछ ना कुछ अलग होगा. उनको कोई 2 सम NPO का सेम टाइप का दिखने वाला नहीं है. कोई 2 सम सेम टाइप का दिखने वाला नहीं है. और फाइनल अकाउंट्स ही है, लेकिन लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट्स के साथ. तुमने फाइनल अकाउंट में कोई लास्ट ईयर का आइटम अभी तक किया ही नहीं है. जो करते थे सब करंट ईयर का प्रीपेड, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का रिजर्व. बट बिजनेस में ऐसा थोड़ी होता है हर साल हर बार क्या फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स बनाओगे, कंटिन्यू ईयर का ही अकाउंट्स बनाते हो तुम. तो NPO इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूइंग ईयर का अकाउंट. तो तुमको लास्ट ईयर का भी डेटा उठाने का है, करंट ईयर का भी डेटा उठाने का है. तो सोच के करने का. विल गो स्लो, आराम से करेंगे, बट मेहरबानी करके लेक्चर मिस मत करना, वरना पक्का ये 12 मार्क विल गो फॉर अ टॉस. 12 मार्क मतलब 12,000 स्टूडेंट्स नीचे. बॉम्बे का सब अच्छा कॉलेजेस गया, जाओ कोपर खैरने, वाशी, नेहरू, नाला सोपारा, उधर जाना पड़ेगा. ओके, लेट्स बिगिन विथ NPO. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज एन NPO नाउ? यू वांट टू आस्क समथिंग? घर पे कुछ पूछ रहा था कोई? कंपल्सरी, बोथ आर कंपल्सरी. ऑप्शन खाली इसमें 2, 3, 4 और 5 और. ठीक है. बोथ यू कैन चूज एट द टाइम. करके सब जाने का, खाली इसको छोड़ के है ना सब परफेक्टली करके जाने का. कंप्यूटर को तो देखना ही नहीं है, थियरी है, अटेम्प्ट करने का ही नहीं. मेरे पेपर में आएगा, अटेम्प्ट मत करना. में नहीं पूछोगे गांडाओ. प्रीलियम में पैटर्न सेम रहेगा, कंप्यूटर पढ़ के जाओ. बहुत डिफिकल्ट आया शेयर्स तो अटेम्प्ट करो ऐसा, अदरवाइज कंप्यूटर अटेम्प्ट करने मत जाओ. थियरी है ना, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. बोल. ऐसा कभी नहीं होगा. दोनों सम का लेंथ सेम होगा. आएगा तो दोनों में जर्नल, लेजर तो दोनों में लेजर, और चांसेस है लेजर का ही आने का ज्यादा, जर्नल का चांस कम है. BOE और डिसोल्यूशन दोनों में जर्नल आ सकता है. ओके, बट सम वुड बी इजी, डिसोल्यूशन प्रॉब्लम्स वुड बी इजी. You will be solving before prelims, you will be solving 4 to 5 board papers with new pattern. और वो तुमको देख के मालूम पड़ेगा बोर्ड का लेवल क्या है. ठीक है. तुम बोलेगा सर ये 1.5 घंटे में हो जाएगा, ऐसा लेवल है. ओके, बट 3 घंटे का पेपर है अभी. हाँ, सम भी आ सकता है. BOE में लेजर है ही नहीं ना, इसके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जर्नल पूछेंगे तो डिसोल्यूशन में पूछ सकते, बाकी गारंटी नहीं है. पास्ट पेपर्स का रिकॉर्ड देखोगे ना, उसमें से 10 में से 5 साल में जर्नल है, 5 साल में लेजर है, ऐसा. तो यू नेवर नो. सो जर्नल करके रखने का, ये सब चैप्टर्स करके रखने का, उधर यू कैन चूज वॉट एवर यू वांट टू अटेम्प्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ NPO. लिसन वेरी केयरफुली. व्हाट इज NPO नाउ? NPO का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. NPO का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है नॉन ट्रेडिंग.
एनटीओ या एनपीओ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सर्विस मोटिव है। इसका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, तो एनपीओज का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन प्रॉफिट लॉस इज नॉट द मोटिव। व्हाट इज द मोटिव? सर्विस मोटिव। और हमें क्या करना है चैप्टर में? हमें इनका फाइनल अकाउंट्स बनाना है, हमें बनाना है इनका फाइनल अकाउंट। तो जैसे आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स किया था, क्या बनाते थे वहां पे? ट्रेडिंग, पीएनएल, कैपिटल करंट एंड बैलेंस शीट। इधर भी वही करने का, खाली ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनेगा क्योंकि ये लोग ट्रेड नहीं करते, और पीएनएल नाम नहीं देते क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है ना। इनका मोटिव क्या है? सर्विस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का नाम नहीं आता है यहाँ, नहीं। इसको बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनकम एंड। दिस इज सिमिलर टू योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ऐसा ही दिखता है, फॉर्मेट भी सेम है। एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड। सर ये एक ही अकाउंट है ना, ट्रेडिंग और पीएनएल तो अलग-अलग। वो अलग अलग थे। ट्रेडिंग तो निकल ही गया, ट्रेडिंग तो है ही नहीं क्योंकि ट्रेड करते ही नहीं हो, परचेज सेल तो करते ही नहीं हो आप, तो ट्रेडिंग तो निकल ही गया। पीएनएल के जगह क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड द सेकेंड पार्ट बैलेंस शीट था आपका, बैलेंस शीट था, याद है? बैलेंस शीट के जगह बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के जगह बैलेंस शीट। तो योर आंसर विल बैलेंस शीट की जगह बैलेंस शीट, सेम। ओके, बैलेंस शीट ही है। और कैपिटल बेस चीज, ओनली टू थिंग्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समटाइम्स व्हेन यू हैव बीन गिवन लास्ट ईयर का डेटा, तो लास्ट ईयर के डेटा से आपको एक और चीज बनानी पड़ती है क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड एज लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट। इसको कहा जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट। दिस इज कॉल्ड एज, मतलब जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी, ये साल की ओपनिंग है। अगर लास्ट ईयर का डेटा दिया है तो बाकी कुछ सम में बनाने का नहीं है। पीएनएल के जगह यू हैव टू मेक, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेट मी स्टार्ट, लेट मी कंप्लीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दिस इज क्लोजिंग, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट। और कभी लास्ट ईयर का डेटा दिया है तो यू हैव टू मेक लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल या करंट अकाउंट जैसा कुछ बनाने का नहीं। ओके, वो क्यों नहीं बनाने का और क्या होता है एनपीओ, लेट्स फोकस ऑन दैट। मुझे बताओ, आपको पता है ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है लेकिन सर्विस देता है खाली? हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, schools, gymkhana sometimes. Nowadays most of them are private, but there are certain gymkhanas which are social वाला। दिखता होगा आपके कॉलोनी में, सोसाइटी में, कुछ मिनिमम फीस रहती है उसकी 100, 200, 300 रुपया। ओके, गणेश मित्र मंडल, सो एंड सो मित्र मंडल। ओके, तो वैसा जगह जाके अखाड़ा टाइप्स जिम वगैरह रहता है, उसमें सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कम पैसा रहता है, 100, 200, 300 रुपया महीने का रहता है। सॉरी, शिवाजी पार्क वाला जिम का नाम, बट हाँ, दे डू इट ऑन सर्विस बेसिस। अच्छा हाँ, ओपन है ना, आई थिंक दैट वन इज ओपन, राइट? शिवाजी पार्क ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑल फॉर्म अंडर एनपीओ, ऑल आर अ पार्ट ऑफ एनपीओ। ये भी इस्कॉन, टेम्पल्स, ऑल टेम्पल्स, सिद्धि विनायक टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल, एनजीओज, ऑल एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, बिल्डिंग, हाउसिंग सोसाइटीज। आप जिधर हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो उसका भी अकाउंट्स बनता है, अगर आपको पता होगा, आपके घर पे आता होगा हर साल के एंड में। हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस का खर्चा दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिखता है, मेंबर का कंट्रीब्यूशन दिखता है, उनका जो आप भरते हो ना मेंटेनेंस पर मंथ, वो उसका इनकम है। आपकी सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इनकम क्या है? जो मेंबर हर महीने पैसा देते हैं ना मेंटेनेंस का, वो उसकी इनकम है। उसका एक्सपेंस क्या है? गार्डनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, लाइट, सिक्योरिटी, वाटर, गैस, पाइपलाइन मेंटेनेंस, वो सब उसका खर्चा है। बिल्डिंग का एसेट क्या है? आपका बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स दे आर द एसेट। और बिल्डिंग का लायबिलिटी क्या है? मेंबर का फंड, मेंबर ने जो पैसा देके फंड बनाया ना,
प्री रिसीव फंड जो भी फंड्स दिया हुआ है ना मेंबर ने बिल्डिंग के लिए, वो उसका फंड है। जो आप मेंटेनेंस देते हो ना, पूरा खर्चा नहीं होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचते जाता है, वो उसका रिजर्व बन जाता है। वो क्या बन जाता है? उसका रिजर्व बन जाता है। एंड एसेट्स में और क्या आएगा? हाउसिंग सोसाइटी का एक तो बिल्डिंग है, एरिया, पार्किंग लॉट्स, ग्राउंड, वो सब आ जाता है। और एक्स्ट्रा पैसा रहता है तो वो इन्वेस्ट कर देता है एफडी में, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में। तो कभी उठा के आप देखना अपने बिल्डिंग के अकाउंट, उसमें आपको ये सब डिटेल देखने मिलेगी कि आपके बिल्डिंग का जो सेक्रेटरी है, जो चेयरमैन है, वो क्या क्या कर रहा है पैसों का, किधर किधर से इनकम का, मेंटेनेंस का पैसा आ रहा है और किधर किधर वो खर्चा कर रहा है। इज दिस क्लियर? सो नाउ यू प्लीज पे अटेंशन एज बोथ ऑफ यू विल बी आउट ऑफ द क्लास। सीधा बैठने का, बात नहीं करने का। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनपीओ। क्या क्या एग्जांपल देखा हमने एनपीओ का? स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, जिमखानास, temples, trust. All temples are organizations where activities are going on. फंड आता है, डोनेशन दान पेटी में डाल के आते हो तुम लोग, वो सब उनका इनकम है, उससे वो लोग खर्चा करता है। पुजारी का पैसा, पूजा का सामग्री का पैसा, मंदिर का मेंटेनेंस का पैसा, रिनोवेशन का पैसा, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा, उनको भी खर्चा लगा रहता है। फिर उनका एसेट क्या है? मंदिर का बिल्डिंग, मंदिर का जगह, दैट इज ऑल देयर एसेट। और एक्स्ट्रा पैसा बचा तो एफडी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, करोर्स ऑफ रुपीस का एसेट्स रहता है फॉर टेम्पल्स के पास। अभी तिरुपति बालाजी का ही निकला था, 4000 करोड़ का कैश था, सॉरी 400 करोड़ का खाली कैश था उसके पास, 400 करोड़ का खाली कैश था, बाकी एसेट्स अलग। गोल्ड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गोल्ड, ओके, दे बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गोल्ड। ऑर्नामेंट्स जो रहता है ना आपका, भगवान को चढ़ाते हैं, वो सब उनका एसेट्स में दिखता है। They shown on the asset side. Liability में जो डोनेशन का फंड आया रहता है उनको, आपका दान पेटी का पैसा, गवर्नमेंट से आया हुआ पैसा, दूसरा प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी से आया हुआ डोनेशन, वो सब उनका लायबिलिटी बन जाता है। इज दिस क्लियर? सब टैक्स वैक्स कुछ भरना ही नहीं रहता उसको। डोनेशन लायबिलिटी 1 मिनट। हाँ, टेम्पल्स भी प्रॉफिट नहीं हो जाता है, तो उनके पास ज्यादा पैसा जो बचता है जिन्होंने इन्वेस्ट। देखो प्रॉफिट मेकिंग नहीं बोलते हैं उसको, वी कॉल इट एज सरप्लस और डेफिसिट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वी कॉल, सपोज इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, जरूरी तो नहीं है इनकम इक्वल टू एक्सपेंस हो, कभी इनकम ज्यादा होगा, कभी एक्सपेंस ज्यादा होगा। तो इनकम ज्यादा है, वी कॉल इट एज सरप्लस, वी डोंट कॉल इट प्रॉफिट, वी कॉल इट। और एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो वी कॉल इट डेफिसिट। ओके, वी कॉल इट डेफिसिट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है समझो। हम लोग एक एनपीओ स्टार्ट करते हैं, तो आपको बता रहा हूँ सब डोनेशन वोनेशन कैसे आता है बता रहा हूँ। व्हाट आर यू आस्किंग? सर अभी जैसे ये टेम्पल्स they invest in whatever like shares या bonds जो भी, तो उसका जो रिटर्न्स रहता है it is इनकम। हाँ नहीं, इनकम रहता है, बट देन वो किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन। So it will not be like particularly chairman को मिलेगा? नहीं, उस पर भी आता हूँ। देखो मेरा ऑडिबल है क्या? आपको आवाज आ रहा है? सर आपका माइक बंद हो गया शायद। वो आपके पास वो ईयरफोन में से रेड लाइट ब्लिंक हो रहा था। आवाज आ रहा है? हाँ आवे છે। हाँ नाउ देखो, पहली चीज, जैसे कंपनी फॉर्म या नॉर्मल बिजनेस होता है, उसमें प्रिंसिपल होता है 1 शेयर 1 वोट। 1 शेयर, जिसके पास ज्यादा कैपिटल होगा उसका चलेगा, जिसके पास ज्यादा कैपिटल होगा उसका डिसीजन मेकिंग होता है, बराबर है। बट इन एनपीओज एंड एनजीओज इट इज फॉर सर्विस, इट इज फॉर, उधर प्रिंसिपल होता है 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट। अगर हमने सबने एक एनपीओ बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने सबने एक एनपीओ, अभी क्लास का बेनिफिट के लिए समझो हमने डिसाइड किया कि कैंटीन बनाते हैं, आप ही लोगों से मैं कंट्रीब्यूशन लूंगा, तो मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, मैं एक ही बंदा हूं, आप लोग भी सब एक एक बंदे हो, तो 1 पर्सन 1 वोट, जैसे डेमोक्रेसी होता है वैसा होता है। फिर अभी आप लोग हर रोज तो आ नहीं सकते कैंटीन का काम चलाने को, तो आप किसी को अपॉइंट कर लोगे, सम डायरेक्टर या सम मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रस्टी, किसी को आप अपॉइंट कर लोगे कि आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सके। बट वो जो वोटिंग
चार्ज है कि है ही नहीं। 1 मिनट। हो ही गया होगा। हेलो, ऑडिबल? ઓડિબલ? સર અટકાવો છો તમે થોડા થોડા. નહીં નહીં, એ તો ઠીક છે, પણ અવાજ આવે છે ને હવે? હા હવે આવે છે. कैसे हो रहा है ये? हाँ, अभी तो 70% था, इसकी वजह से ही बंद हो रहा है। हेलो, ના સર અવાજ પાછો જતો રહ્યો. અવાજ કરેક્ટ થાય છે bro. now listen guys, કમ્પ્લીટ નેટવર્ક ઇશ્યુ. ના સાંભળાતું કઈ સર. તારું મને આવે છે, મારું તને નથી આવડતું. ના સર સંભળાય છે. હા સર વચ્ચે 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 અટકાય છે તમારો અવાજ. હા, તો તમારો વિડીયો વચ્ચે વચ્ચે અટકાઈ જાય છે. અવાજ પણ અરે Lag થાય છે, lag. પણ હવે આવાજ આવે છે? અવાજ આવે છે. आवाज आ रहा है ना सबको? હા સર. हेलो, યસ સર. હા સર આવે છે આવે આવે છે છે. चल इसी वाले में नहीं है ब्लूटूथ? मेरा खत्म हो गया, बैटरी नहीं है, चार्ज खत्म हो गया। थोड़ा तो रहेगा, 0 थोड़ा बहुत रहेगा। देना भाई, रोहन सर के टाइम पर सुबह वेस्ट कर दिया, वेस्ट हो गया मेरा। क्या है इसका नाम, क्या है? एयरबड्स प्लस। ये कैसे ऑन हो गया कि ऑटोमेटिक? हो गया हो गया। हाँ ये 100% बैटरी बता रहा है। क्या हद है तेरा। ऑडिबल ना? યસ સર. चलो बढ़िया, हो गया हो गया। अभी लिसन, एनपीओ में वोटिंग कैसा होता है? तो 1 पर्सन 1 वोट। ओके, ऐसा नहीं है कि इसने ज्यादा डोनेशन दिया तो इसका चलेगा, इसने ज्यादा डोनेशन दिया तो इसका चलेगा, इसने ज्यादा दिया तो इसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल पर्सन विल हैव इक्वल राइट्स। ओके, नाउ दूसरा, आपका जो मैनेजमेंट होता है वो आप ही मेंबर्स ही इलेक्ट करके रखते हो। जैसे पुजारी, पंडित, ट्रस्टी जो भी है, उसको जो भी पैसा डोनर होते हैं ना, इनका सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम मेंबर का ही पैसा रहता है, और कहीं से पैसा आने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि ये बाय और सेल कुछ करने वाले हैं, कुछ खरीद के बेचने वाले हैं। बाइंग एंड सेलिंग इज नॉट देयर एक्टिविटी, देयर मोटो इज व्हाट? सर्विस। पब्लिक से पैसा लो और उनको सर्विस प्रोवाइड करो। ठीक है, तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहां से रहता है? डोनेशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स। इज दिस क्लियर? तो इनका जो भी मैनेजमेंट वगैरह करने का है वो मेंबर्स इनको इलेक्ट करेंगे, मेंबर्स के बिहाफ पे दे टेक द डिसीजन, द डायरेक्टर्स, द ट्रस्टीज, हूएवर दे आर। अब हम लोग एक छोटा सा एनपीओ बनाते हैं और आपको मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। इसमें हम लोग लास्ट ईयर का बैलेंस शीट छोड़ देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर पकड़ के चलते हैं। वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग ने डिसाइड किया चलो एक कैंटीन हम लोग बना देते, या चलो एक छोटा सा जिम खाना बना देते, जो आपको समझ में आएगा तो विल बी एबल टू रिलेट दैट। एक जिम खाना बना रहे हैं, जिम फॉर बेनिफिट ऑफ आवर मेंबर्स। इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, क्या है मोटिव? सर्विस। ओके, अब शुरुआत कहां से होगी? ये तो खाली है, हमने आइडिया प्लेस किया, चलो हम सब मिलके वी मेक अ जिम खाना। तो कहां से आएंगे पैसे? डोनेशन से आएंगे। तो मैं आप सबसे बोलूंगा, मैं भी कुछ पैसा डालूंगा, आप भी कुछ पैसा डालो, जितना जिसको डालना है, जितना जिसको डालना है उसको कहते हैं डोनेशन। डोनेशन मतलब वॉलंटरीली गिवन बाय द मेंबर्स, वॉलंटरीली गिवन बाय द मेंबर्स। तो इसका एंट्री क्या होगा? डोनेशन का एंट्री क्या होगा? कैश टू डोनेशन, बराबर है, कैश टू डोनेशन। तो एक कैश अकाउंट बनेगा, इस कैश अकाउंट को कहा जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या कहा जाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश टू
शुरू में तो कुछ बैलेंस नहीं होगा, पहला साल है, तो कैश में ये रिसीट साइड है, ये अपना नॉर्मल कैश अकाउंट, ये पेमेंट साइड है। ओके, तो रिसीट एंड पेमेंट इज व्हाट, कैश अकाउंट ही है बट उसका समरी बोला जाता है। इट इज व्हाट, अ समरी ऑफ कैश बैंक अकाउंट। समरी मतलब पूरे साल के जो मेजर ट्रांजैक्शन है क्लब करके यहाँ पे दिखा है। डे वाइज नहीं रहता, पूरे साल का टोटल्स रहता है। पूरे साल में कितना डोनेशन आया, पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन आया, पूरे साल में कितना फीस आया, सबका टोटल्स रहता है रिसीट एंड पेमेंट। बट है तुम्हारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का ही समरी। इज दिस क्लियर? तो एनपीओ में तुम पहले ये कैश अकाउंट बनाओगे, इसमें डोनेशन आया, सपोज साल में अपने को पूरा मिला के 1 लाख रुपया डोनेशन मिला। कितना मिला? 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश टू डोनेशन, कितना आएगा? 1 लाख रुपीज। इज दिस क्लियर? अब हमने एज अ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किया है कि भाई किसी किसी को लाइफ मेंबर बनना होता है, कोई लाइफ मेंबर बन जाता है। आपने देखा होगा क्लब का, जिम खाना का, ऑर्गेनाइजेशन का, एक साथ में पूरा पैसा लेकर लाइफ की मेंबरशिप ले लेता है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई अगर लाइफ का मेंबर बनना है तो 40,000 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 40,000। क्या वो 40,000 टुकड़े टुकड़े में देगा कि वन टाइम दे देगा? वन टाइम दे देगा 40,000। तो जो वन टाइम आया हुआ पैसा है, जैसे आपने अभी ऑर्गेनाइजेशन चालू करने के लिए डोनेशन दिया, लाइफ मेंबरशिप लिया, ये सब वन टाइम आ रहा है। तो वन टाइम आया हुआ पैसा बिजनेस क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? उससे एसेट्स खरीदेगा। वन टाइम आए हुए पैसे से वो क्या करेगा? एसेट्स खरीदेगा। और जैसे कैपिटल, ओनर कैपिटल डालता है, तो कैपिटल के पैसे से बिजनेस क्या खरीदता है? एसेट्स। फिर प्रॉफिट होता है, उससे वो खर्चा निकाल, इनकम से वो खर्चा निकाल। वैसे कोई भी एनपीओ वन टाइम आया हुआ पैसे से क्या करेगा? एसेट्स खरीदेगा। और हर साल आए हुए पैसे से क्या करेगा? एक्सपेंस पे करेगा। आपका बिल्डिंग में भी वही है। आपने जो फ्लैट खरीदा तो 2 करोड़ 1 करोड़ रुपया दिया है, आपका हाउसिंग सोसाइटी ने वो बिल्डिंग में दिखाया हुआ एसेट्स में। फिर आप जो हर महीने मेंटेनेंस पे करते हो उससे बिल्डिंग खर्चा निकालता है। आर यू गेटिंग दिस? तो कोई भी बिजनेस ऐसे ही काम करता है। 2 तरह के रिसीट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसीट, एक होता है रेवेन्यू रिसीट। एक होता है कैपिटल रिसीट, एक होता है, तो जो लमसम पैसा आता है, जैसे कि डोनेशन आपने शुरू करने के लिए जो दिया, या लाइफ मेंबरशिप फीस जो एक साथ लमसम में दी, वो पैसों का इस्तेमाल कहां करेंगे हम लोग? एसेट्स खरीदने। वो पैसों का इस्तेमाल कहां करेंगे? क्योंकि वो लमसम आया है और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा बिजनेस, उसको चुकाने की जरूरत नहीं है, एकदम लॉन्ग टर्म। लोन्स लेते ना आप, लोन्स, वो पैसा भी आप एसेट्स में डालते, उससे आप खर्चा नहीं चला, लोन से आप खर्चा नहीं चलाता, आप एसेट्स में डालते हैं। तो वैसे ही डोनेशन आया, लाइफ मेंबरशिप फीस आया, उसका पैसा आप किधर इस्तेमाल करोगे? एसेट्स लेने। और जो हर साल पैसा आता है ना ऊपर से, ऑर्गेनाइजेशन में हर साल भी पैसा लेंगे हम। कैसे लेंगे देखो बता रहा हूं। सबसे पहला डोनेशन आया, कैश टू डोनेशन एंट्री, समझा? ये पहला इफेक्ट हुआ, कैश टू। सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस डोनेशन, डोनेशन में जाएगा बाय कैश। ये डोनेशन अकाउंट है, डोनेशन में जाएगा बाय कैश 1 लाख। और ये डोनेशन इनकम है, लेकिन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म है, लमसम है, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए आई हुई है। तो ये ट्रांसफर हो जाएगी टू कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगी। किधर हो जाएगी? तो यहां पर लायबिलिटी साइड पे अपने को दिखेगा कैपिटल फंड। फिलहाल तो जीरो था क्योंकि शुरुआत में कोई कैपिटल था नहीं। किससे कैपिटल बन रहा है? मेंबर्स से बन रहा है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में कौन पैसा डालता है? ओनर। पार्टनरशिप में कौन पैसा डालता है? पार्टनर्स। वैसे एनपीओ में कौन पैसा डाल रहा है? मेंबर्स। तो मेंबर सब कौन बन जाएंगे? ओनर्स, स्टेक ओनर्स, ओनर्स है। इसके लिए यहां पे मैंने क्या लिखा? खाली कैपिटल नहीं लिखा, क्या लिखा? कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड का पैसा कौन दे रहा है? ओनर्स दे रहे हैं। आर यू गेटिंग दैट? मेंबर्स दे रहे हैं। तो कैश में लिखा टू डोनेशन, सेकेंड इफेक्ट ऑफ डोनेशन, आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे 1 लाख, 1 लाख रुपीज। कैश को ध्यान मत दो, कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, उधर भी मैं एंट्रीज बताते जाऊंगा। इधर डायरेक्टली आप देख सकते हो, एसेट साइड पे कैश आया है और लायबिलिटी साइड पे डोनेशन आया है। खाली बैलेंस शीट पे फोकस करो तो भी समझ में आता है। कैश कितना आया? 1 लाख, और लायबिलिटी साइड पे डोनेशन आया
हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस के लिए कैपिटल इज अ लायबिलिटी, देना बाकी है, और कैश इज एसेट। इज दिस क्लियर? तो कैपिटल फॉर्म कैसे हुआ, मेंबर के पैसों से। कैपिटल फॉर्म कैसे हो रहा है, मेंबर के पैसों से, खाली डोनेशन से नहीं। डोनेशन तो आप सबसे मैंने बोला मर्जी से, ये बोलेगी मैं 10,000 दूंगी, ये बोलेगी मैं 20,000 दूंगी, ये बोलेगा मैं 40 देगा, ये बोलेगा मैं 20,000 देगा, 5,000, 2,000, 3,000, सबसे मैंने इकट्ठा किया। ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिखाया एज ए लायबिलिटी। जब भी ये बंद होगा, ये पैसा किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मेंबर्स, सब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ऐसा नहीं कि इसने 5 दिया तो इसको 5 वापस मिलेगा, इसने 20 दिया तो इसको 20 वापस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब मेंबर्स में इट विल बी डिवाइडेड इक्वल। जब ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा तब जनरली कोई वापस लेता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का भी ऐसा एनपीओ बंद होता है तो कोई पैसा मांगने वापस आता नहीं है, बट हुआ तो मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बंद ही नहीं होता, वैसा चालू ही रहता है। जनरली ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि बंद करो, मेरे को डोनेशन वापस चाहिए, समझा? डोनेशन मतलब यू फॉरगेट, यू गिव इट आउट ऑफ योर चैरिटी, ऐसा। तो डोनेशन तुम्हारा बना 1 लाख, कैश बना 1 लाख। यहां तक क्लियर है सबको? फिर दूसरा पॉइंट, हमने डिसाइड किया कि किसी को लाइफ का मेंबरशिप लेने का है, तो क्या दे सकते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस साथ में दे सकते हैं। दे कैन गिव पूरा लाइफ का कंट्रीब्यूशन साथ में। तो ये आके बोला मेरे को, स्मित आके बोला सर मेरे को लाइफ का मेंबरशिप बनने का, बोलेगा 40,000 लेके आ। कितना लेके आ? 40,000। ये मेरे को बोलेगा सर मेरे को भी लाइफ का मेंबर बनने का है, बोलेगा 40,000 लेके आ। ये दोनों ने मेरे को कितना दिया, 40-40 दिया मेरे को, मतलब हम लोग भी साथ में ही ऑर्गेनाइजेशन को दिया। तो एंट्री क्या बनेगा इसका, कैश टू लाइफ मेंबरशिप फीस। तो इधर वही आ जाएगा, टू लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना, 40-40, 80,000 बन जाएगा। और यहाँ पे चला जाएगा ऐड, क्योंकि ये 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे ये लाइफ मेंबरशिप फीस आ गया। कितना आ गया? और कैश कितना हो जाएगा आपका, 1,80,000। आर यू ऑल विथ मी? घर वालों को समझ रहा है? तो सर वी ओपन अ कैश अकाउंट, We won't open. This would be given to you in the question. This cash account would be given to you in the question. With the help of this, you need to make these two. Trial balance नहीं है, cash. Trial balance की जगह cash. Okay? Practically वो भी trial balance से ही बनता है। Practically सभी NPO जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस से ही बनता है, लेकिन ये पुराना सिस्टम चल रहा है। तो पुराने सिस्टम में रिसीट पेमेंट होता है, कैश अकाउंट, और उसके बेसिस पे बनाना। तो जग मार के अपने को कैश अकाउंट लेके करना पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ कैश अकाउंट से कैसे करना है। फिलहाल समझो प्रैक्टिकली बन क्या रहा है यहाँ पे, ये डोनेशन आया, लाइफ मेंबरशिप आया, यहाँ पे कैश बढ़ा, ठीक है। अभी इतना पैसा आ गया, अभी हम लोग इससे कुछ एसेट खरीदते हैं, हम लोग इससे कुछ एसेट खरीदते हैं। अब ये पैसा लंबे टाइम तक आया, लंबे टाइम के लिए रहेगा, ओके। तो ये कैश देख के हम पहले एक जगह खरीद लेते हैं जिम खाना के लिए। तो जगह आई समझो 50,000 की, प्रॉपर्टी आई कितने की, 50,000। एंट्री क्या होगी प्रॉपर्टी खरीदने की, लैंड टू कैश, प्रॉपर्टी टू कैश। तो कैश में क्या आएगा, बाय प्रॉपर्टी, कितना, 50,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगा 50,000, एसेट है, और कैश 130 हो जाएगा। आर यू विथ मी? अच्छा, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बाद जिम का इक्विपमेंट्स भी चाहिए, जिम का इक्विपमेंट्स, फर्नीचर चाहिए अपने को, एयर कंडीशनर वगैरह अगर लगाने का तो लगाएंगे। तो सब मिला के समझो और 40,000 का खर्चा होगा, और 40,000 का खर्चा होगा। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट, फर्नीचर इक्विपमेंट, बाय इक्विपमेंट, बाय फर्नीचर, बाय इक्विपमेंट, कितना, 40,000। और इधर क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा 40,000, और कैश कितना हो जाएगा, 90,000 बच जाएगा अभी। आर यू ऑल विथ मी? तो क्या किया मैंने, इक्विपमेंट खरीदा और 10,000 का फर्नीचर भी खरीदा। 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय फर्नीचर 10,000 रुपीज। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर 10, फर्नीचर आ जाएगा 10, और कैश कितना हो जाएगा, 80,000। ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, एसेट्स आ गए हमारे पास, राइट, इक्विपमेंट आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, सब कुछ हो गया, शुरुआत हो गई, मेंबर्स भी बन गए, 2 लाइफ मेंबरशिप है मेरे पास, ओके, एकदम सॉलिड। अब बाकी मेंबर से खर्चा चलाने के लिए
आप कुछ डिसाइड करोगे, दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन. यू विल डिसाइड समथिंग दैट इज कॉल्ड एज. ये सब्सक्रिप्शन सब में नहीं होता है. टेम्पल्स वगैरह में ये आम डोनेशन से काम चले, दान पेटी में जो डालता है ना, उससे ये काम चल जाता है. स्कूल्स में फीस होती है, कॉलेजेस में फीस होती है, हॉस्पिटल में फीस होती है, डॉक्टर्स वगैरह पेशेंट्स की फीस होती है. नॉर्मल जिम खाना, चैरिटेबल ट्रस्ट में आपका क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है. जिम खाना है या फिर ये सब लीजर एक्टिविटीज है, इसमें क्या होता है? मेंबर का सब्सक्रिप्शन होता है. जैसे आप मेंटेनेंस भरते हो, फ्लैट मेंटेनेंस इन हाउसिंग सोसाइटी, दैट वे ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा चलाने के लिए और पैसा लगेगा. इन पैसों से तो क्या आ गया? एसेट आ गया. और ये कैश पड़ा हुआ है, बट ये कैश डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं होगा, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज तो हर साल होगी ना. और ये कैश कितना चला हो गया? 1 साल 2 साल, फिर तंबूरा. तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक सब्सक्रिप्शन डिसाइड करता है. डिसाइड करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं पर मेंबर 500 रुपया देना पड़ेगा. पर मेंबर 1 साल का 500 रुपया देना पड़ेगा. और आपके पहले साल में हो गए 100 मेंबर्स. कितने हो गए? 100 मेंबर. 500 इंटू 100, 50,000 रुपया आपको हर साल क्या मिलेगा? सब्सक्रिप्शन मिलेगा. व्हाट इज दैट सब्सक्रिप्शन फॉर यू? इनकम. एंट्री क्या होगा? कैश टू सब्सक्रिप्शन. कैश टू सब्सक्रिप्शन कितना आया? 500. यस, 500 इंटू 100 कितना होता है? अब मुझे ये बताओ, सब्सक्रिप्शन क्या आपको वन टाइम आएगा कि हर साल आएगा? हर साल ही आएगा. सो इज दिस अ पार्ट ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? इसको कहते हैं कैपिटल रिसीट, इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू रिसीट मतलब जो हर साल में. तो ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ये ऐसा दिखेगा. ये आपका सपोज सब्सक्रिप्शन अकाउंट है. इसमें क्या लिखा मैंने? टू सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में आएगा बाय कैश, और ये जाएगा जैसे टू पीएनएल लिखते थे आप, इधर जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कितना? 50,000. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम में लिखेगा बाय सब्सक्रिप्शन. कितना? 50,000. और कैश बढ़ेगा कि कम होगा? कैश बढ़ा ना. कितने से बढ़ा? 1,30,000 हो गया. आर यू ऑल विथ मी? ऑर्गेनाइजेशन शुरू कहां से हुआ? मेंबर के डोनेशन और लाइफ मेंबरशिप फीस से. उन पैसों से मैंने क्या खरीदा? एसेट्स. अब चलाने के लिए, खर्चा निकालने के लिए और पैसे लगेंगे, तो मैं डिसाइड करूंगा एक सब्सक्रिप्शन. वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कर सकता है. 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000, 5,000, 10,000. हम लोग ने चूज किया 500 रुपीज पर मेंबर. कितने मेंबर बन गए हमारे? 100. ये सब्सक्रिप्शन वन टाइम आएगा कि हर साल? ये हर साल आएगा. ये आपका बिल्डिंग का मेंटेनेंस जो आप भरते हो ना हर साल, ये वैसा इनकम बन जाता है. हाउसिंग सोसाइटी की इनकम बन जाती है, वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम बन. सब्सक्रिप्शन और ये दो आइटम्स में फर्क समझा? ये रेवेन्यू रिसीट है और ये कॅपिटल रिसीट. कॅपिटल म्हणजे लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू म्हणजे शॉर्ट टर्म. अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन आ गया. अब ये सब्सक्रिप्शन से मैं खर्चे निकालूं. क्या क्या खर्चे हो सकते हैं मेरे को आप सोच सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है. व्हाट इज द एंट्री फॉर इलेक्ट्रिसिटी? वन बाय वन. व्हाट इज द एंट्री फॉर इलेक्ट्रिसिटी? टू इलेक्ट्रिक. लेट अस से 5,000 रुपीज इज इलेक्ट्रिसिटी बिल. व्हाट विल बी द एंट्री? इलेक्ट्रिसिटी टू कैश. कैश में क्या आएगा? बाय इलेक्ट्रिसिटी कितना? 5,000. और व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? एसेट और एक्सपेंस. तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जाएगा. आता है ना इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में टू कैश और बाय पीएनएल. बाय पीएनएल की जगह बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा टू इलेक्ट्रिसिटी 5,000. और 5,000 कैश आया कि गया? तो 130 से कैश हो जाएगा 125,000. कैन यू सी दैट? अच्छा, 25 होता है अजी खर्चा. मेंटेनेंस ऑफ जिम इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस का खर्चा होगा. चलो 5,000 का मेंटेनेंस हो गया. व्हाट विल बी द एंट्री? Cash to maintenance expense. Maintenance to cash was sorry. So by maintenance how much? 5,000 rupees. और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस में टू मेंटेनेंस 5,000. आर यू गेटिंग दैट? और कैश में माइनस हो जाएगा 5,000. यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5,000. इज दिस क्लियर? व्हाट एल्स? Cleaning charges, sweeping charges, sundry expense, miscellaneous expense. Let's call it miscellaneous expense. 4,000 rupees का miscellaneous expense हो गया. Same entry by miscellaneous expense 4,000 sundry expense. और यहाँ पे आ जाएगा टू
मिसलेनियस 4000 और कुछ वेरी गुड कौन बोला डेप्रीसिएशन शाबाश डेप्रीसिएशन ऑल फिक्स्ड एसेट डेप्रीशिएट यस और नो तो अपने को भी डेप्रीसिएशन करना है समझाए कि नहीं पाकू અહીંયા जो so depreciation what is the entry for depreciation to asset let us say equipment और फर्नीचर दोनों को 10% से डेप्रीशिएट करना हाँ तो क्या इफेक्ट करते हो आप लेस फ्रॉम एसेट्स एंड P&L डेबिट की जगह expenditure will it come under cash because it is a non cash expense non cash है तो कैश अकाउंट में दिखने वाला very good so this is 40,000 less depreciation कितना था 4,000 का डेप्रीसिएशन तो ये हो जाएगा कितना 36 और फर्नीचर कितना था आपका 10,000 उस पे लेस डेप्रीसिएशन 1,000 तो ये कितना हो जाएगा 9,000 where will you show the second effect of depreciation सीधा expense to depreciation हाँ टोटल इधर कितना है अपना इक्विपमेंट का है 4,000 एंड फर्नीचर का है 1,000 टोटल करके लिख सकते हो उधर दो कॉलम बनेंगे 4 + 1 5 इंश्योरेंस 1 मिनट यहाँ तक समझा अब आप इंश्योरेंस भी निकलवा सकते हो कुछ लॉस हो गया कुछ एक्सीडेंट हो गया किसी को इक्विपमेंट कुछ खराब हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा क्लेम व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर यू एक्सपेंस तो 3,000 रुपए का इंश्योरेंस निकल आया प्रीमियम पे करो व्हाट इज द एंट्री सेम ये कैश एक्सपेंस है बाय इंश्योरेंस कितना था 3,000 रुपए का था समझो प्रीमियम इज 3,000 रुपीज ओके करस्पॉन्डिंग एंट्री एक्सपेंस में जाएगा टू इंश्योरेंस और कुछ हाँ कैश में से 3,000 कम कर दिया कैश में से कितना कम किया 3,000 1117 हो गया बराबर स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि आपने मिसलेनियस एक्सपेंस का नहीं किया था मिसलेनियस एक्सपेंस का मैं माइनस नहीं किया था 4,000 अच्छा ओके पक्का ना ये टैली रहना चाहिए ये टैली टोटल देखता 180 होना चाहिए एक मिनट क्या है अपना एक मिनट क्या फर्नीचर 5 + 5 10 + 4 क्या नहीं लिखा था अरे वो बोलते हो के लिखा हुआ तुम लोग माइनस नहीं ये 3 है 6 है 9 हो रहा है ना तो एक मिनट ये 180 है और ये 45 95 1 208 आ रहा है सर उसका 2,08,000 कैश इज 2,08,000 Total is सब्सक्रिप्शन तो ऐड होएगा ना ऐड होएगा ना इधर पैसा आया ना हाँ तो वो शायद ऐड नहीं किया था क्या तो 183 होता है लेकिन कैश कितना होता है ये 180 का टोटल नहीं 183 नहीं है कैश का मिस्टेक 1 मिनट सर पहले टोटल था 2,08,000 सर सब वापस करो अभी 180 45 95 और इधर है ना कैश आएगा तुम्हारा 85,000 एक मिनट 50 तो ऊपर नहीं था नहीं तो होएगा अरे 1,80,000 और 50 प्रॉपर्टी लिया 50 का 40 इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस हाँ देखो अभी 180 और ये 45 है हो रहा है ना 85 था मतलब कैश में कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ रहेगा कैश का ना देखो तुमको ब्रीफली वापस बताता हूँ कैश में क्या हुआ था शुरू में कैश कितना आया था 1,80,000 आया था 1,80,000 में से प्रॉपर्टी कितना इक्विपमेंट 40 का लिया तो प्रॉपर्टी 50 का लिया 180 में से 130 हुआ 130 में से 40 का इक्विपमेंट 90 हुआ 90 में से 10 का फर्नीचर कितना हुआ 80 हुआ 80 के बाद अपने को ये मिला 50 का सब्सक्रिप्शन तो 130 माइनस 55 इलेक्ट्रिसिटी का और इसका तो 120 में से 4 गया मिसलेनियस का 116 और 3 गया इंश्योरेंस का तो 113 तो 1,13,000 सर एक काम करो कैपिटल में ऐड कर
किया ना 50 है। अच्छा हाँ, सब्सक्रिप्शन रह गया था, राइट। सब्सक्रिप्शन का 50,000 मैंने ऐड, हाँ वेट सर हाँ। कैश का 1 minute, I'll repeat the cash, स्टार्टिंग से ही करते हैं। What was the initial cash? 1,80,000 1,80,000 माइनस प्रॉपर्टी का 50 130 माइनस 40 90 130 minus 40 is 90 90 minus 10 is 80 80 plus 50 130 सब्सक्रिप्शन माइनस 5 minus 120 minus 4 minus 3 113 is the value of cash right now. 1,13,000 is the value of cash. Wait, 5 minutes. 1,13,000 is the value of cash. Is this clear? कैसे किया मैंने एसेट्स वैसे जो खरीदा वो माइनस किया, सब्सक्रिप्शन जो पैसा है वो ऐड किया, माइनस इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस मिसलेनियस, ठीक है, और इंश्योरेंस, ये सब खर्चा माइनस। डिड आई सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम कैश? सोशल एसेट से, ओके। यहां तक क्लियर? ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बना, इससे एसेट खरीदा, फिर इनकम्स आए, एक्सपेंसेस हुए, अब साल खत्म हो गया, पहले साल में देखते हैं, लेट अस सी वेदर वी हैव मेड प्रॉफिट और लॉस। तो इसको क्या कहेंगे आप? बैलेंस करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करेंगे, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करेंगे, कितना आता है ये? 50,000 50,000 21 ये कितना है? 10 plus 4 14 29 is balance 28,000 का क्या कहेंगे इसको? प्रॉफिट नहीं कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सरप्लस कहेंगे। ये सरप्लस किसमें ऐड करना है आपको? कैपिटल फंड में ऐड करना है। जैसे प्रॉफिट ऐड करते हो वैसे कैपिटल फंड में ऐड करना है। ये हो गया ऐड सरप्लस, कितना? 28,000। अब ये टोटल कितना है? 2,08,000 2,08,000, इज दैट राइट? और कैश बैलेंस यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ये आपका बंद होगा। व्हाट इज द कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस? इट वुड बी 1,13,000, इज दैट राइट? ये बाय बैलेंस सीडी, ये बाय बैलेंस सीडी, कैश बैलेंस ये इधर दिख रहा है आपको 1,13,000। अब ये टोटल देखो, ये क्या हो जाएगा? 2,08,000 पे टैली हो जाए। इज दिस क्लियर? 2,08,000 पे इट विल टैली। That's how you make the final accounts of an NPO. समझा बेसिक्स? मुझे बताओ सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम एनपीओ का कहां से होता है? मतलब हाँ, वो सब डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सब देता कौन? मेंबर्स। सबसे मेजर सोर्स ऑफ मनी इज फ्रॉम मेंबर्स, ओके। अब दो तरह के रिसीट होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसीट, एक होता है रेवेन्यू रिसीट। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसीट? वन टाइम, लॉन्ग टर्म, घड़ी घड़ी आने वाला, वो कहाँ डालते हो आप? कैपिटल फंड में, और उससे क्या खरीदते हो? एसेट। एसेट को क्या कहा जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसीट से आप क्या खरीदते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हर साल आने वाले इनकम, उसको क्या कहा जाता है? रेवेन्यू रिसीट। और उससे आप क्या पे करते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। Is this clear? And बाकी तो आपका ये डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम इज ग्रेटर, वी कॉल इट सरप्लस। एक्सपेंस इज ग्रेटर, वी कॉल इट डेफिसिट। सरप्लस है तो ऐड, डेफिसिट है तो बैलेंस शीट विल टैली। कैश अकाउंट हमने क्यों बनाया? कैश अकाउंट आपको सब में बनाने का ये क्या है? क्वेश्चन में दिया हो तो आप ये आइटम देख के ये दोनों बना सकते हो। खाली इसको देखो, मुझे बताओ प्रॉपर्टी किधर दिखाओ? एसेट, इक्विपमेंट, asset, furniture, asset, electricity, expense, maintenance, expense, miscellaneous, expense, insurance, expense, balance, asset। हमने जो प्लस माइनस करके ढूंढा ना, ये आपको दिया होगा सब, वो सीधा किधर जाएगा? एसेट। डोनेशंस, liability add to capital fund, life membership fees,
लाइबिलिटी, क्योंकि ये दोनों क्या है, वन टाइम है. एंड सब्सक्रिप्शंस इनकम. ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको सिर्फ पोस्ट करना है. गेट द सरप्लस डेफिसिट, ट्रांसफर टू कैपिटल एंड टैली द बैलेंस. समझाना. All for the day. We start with the sums in the next lecture. You can leave. Tata, bye bye.